I wasn't able to move. My hand stopped working. They got paralyzed. There was nothing in the test. ये disease का ही किसी को पता नहीं है, तो इसकी क्योर भी किसी को पता नहीं है. अहमदाबाद के बड़े से बड़े न्यूरोलॉजिस्ट 3 से 4 को मैंने चेंज किया. The doctors ran all the tests, but कुछ नहीं आया. They were clueless. I was in ICU. This condition is called conversion disorder. My ex was very abusive physically and mentally, and I'm losing my father. Dude, कोई भी amount मेरे dad के loss को compensate नहीं कर सकता. સગા કોણ છે કોણ નથી બરાબર છે એ ત્યારે ખબર મુસીબતના ટાઈમમાં તમને કોણ હેલ્પ કરે છે. I suppressed my feelings. Crying is normal. મારા જો સ્પાઉસ બદલેગા ના તો ही मेरी लाइफ सुधरेगी. Tell my husband this. तेरा सर बच गया, मैंने पिलो को फोड़ दिया. This podcast is very special because in this we have a young medical doctor who herself went through a disorder which appeared to be neurological, but eventually we realized that it was an outcome of trauma. ये पॉडकास्ट बहुत ही खास है क्योंकि इसमें डॉक्टर भूमि ने बहुत ही ऑनेस्टली अपनी खुद की मेंटल हेल्थ जर्नी के बारे में बताया है. उनको किस तरह से उनके ट्रॉमा की वजह से उनके फिजिकल बॉडी में भी सिम्टम्स आने लग गए थे, किस तरह से उनकी लाइफ बिल्कुल बदल गई उनके ट्रॉमा की वजह से, और बाद में थेरेपी लेने से, हेल्प लेने से किस तरह से उनकी लाइफ वापस नॉर्मल हो गई और किस तरह से वो उसमें से बाहर निकल आई. Hi, I'm Bhumi Vyas with Riri Trivedi on Real People, Real Stories. વેલકમ વેલકમ, વેરી ગુડ મોર્નિંગ ને કેમ છો? બહુ જ મજામાં. Bhumi Vyas is with us today. She is in much demand doctor, Dr. Bhumi Vyas. She works with hair transplants. And today she is here to talk about her journey with mental health. ये conversation बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा. हम हिंदी में, गुजराती, इंग्लिश सब में मिक्स्ड बात करेंगे, पर ये conversation में भूमि का जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसके बारे में वो बात करेगी, जो एक्चुअली मुझे भी बहुत अच्छा लगा देख के. तो भूमि, सबसे पहले शुरुआत करते हैं, थोड़ा अपने बारे में बताइए. Yes. So I am a hair transplant specialist. I have done my masters in hair and skin both, but I am more focused on hair. Okay. Now a little bit of skin, but basically into aesthetics, so Botox and fillers. So I make pretty people more pretty. Wow. Wow. Yeah, so that's amazing. it. Yes, I'm working full-fledged now. I'm learning so many things. I'm traveling to different parts of the world to learn new technologies and new techniques and everything. But yes, there is a drastic change in my personality after I took therapy specifically, because many people जो मुझे बहुत सालों से जानते हैं, let it be my family, my friends, जो मुझे 3-4 साल के बाद मिल रहे हैं, they are like, where is the old Bhumi? I mean, this is so much better, new, what has happened to you? And they are so happy. I'm also so happy, and I look back to those pictures when there was a phase where I needed help. It was like, oh my God, look at myself. I can't even accept that these were my pictures, and this was me years before, and now I am like this. And, So, yeah. first of all, I really appreciate the fact that you've come forward to talk about your journey and to support me in my cause, because Real People, Real Stories is all about having conversations with normal, regular people from our life. Not film stars, not celebrities, not influencers, but regular people who have mustered the courage to take help for their mental health and have managed to transform their lives. And this podcast is to help some of you recognize your problems, maybe some of you to get inspired to work and take help, or maybe some of you to just start conversations around this. Yes. So Bhumi, कहाँ से शुरुआत हुई ये जो आपकी जो जर्नी है मेंटल हेल्थ की? कब आपको ऐसे लगा लाइफ में कि कुछ ठीक नहीं है? I can't recall exactly, because when I remember बहुत टाइम से वो छोटी छोटी चीज़ें, वो छोटे छोटे ट्रिगरिंग पॉइंट्स आपकी लाइफ में होते हैं जो आप इजीली इग्नोर करते हैं. राइट, लाइक इन माय केस देयर वर सम पेन, हेडेक्स होना सडनली, सडन बॉडी पार्ट्स पेन होना. कितने साल पहले ये था? Maybe 10 years back, 12 years back. So, and you just ignore it. Okay, it happens. Maybe I walked a lot. Maybe I was on laptop for a long, तो मेरे eyes hurt कर रहे हैं and everything. So वो ignore होते गया. Then there was a phase जहाँ पे हम सब friends लोग बैठे थे. We were having a conversation और कुछ बातें चल रही थी. I could hear everything, but I couldn't process
कि ये क्या चल रहा है, मुझे आगे कुछ बोलना है, अग्री करना है, डिसअग्री करना है. आई कुडंट प्रोसेस द इंफॉर्मेशन. सो वो थोड़ा ट्रिगरिंग लग रहा था मुझे कि नहीं ये क्या हो रहा है. आई वॉज कम्प्लीटली ब्लैंक. फिर मैंने सोचा हाँ बिकॉज आई हैव ओवरवर्क माई सेल्फ, आई नीड अ ब्रेक. तो मैंने बस एक दिन ब्रेक लिया एंड आई वॉज बैक टू द रूटीन लाइफ. बट धीरे 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 वो बिल्डअप होते गया एंड देन मेरे बॉडी में वो इफेक्ट्स आने लगे. सो हाउ इट स्टार्टेड वॉज I was in Dubai, I still remember, and I had some excruciating pain and I wasn't able to move my neck and it was just stretched like that and I wasn't able to move. So मुझे इमरजेंसी में एडमिट किया गया. आई वॉज इन ICU. द डॉक्टर्स ran all the tests but कुछ नहीं आया. they were clueless what to give her. heavy painkillers. sometimes they thought कि मुझे हार्ट अटैक आ रहा है because I was sweating too much. तो उसकी ट्रीटमेंट चल रही है. समटाइम कुछ न्यूरोलॉजिकल ट्रीटमेंट चल रही है. देन समहाउ कंट्रोल में आया सिचुएशन. आई केम बैक टू इंडिया. एवरीथिंग वाज नॉर्मल अगेन. सो आई थॉट ठीक है, आई मस्ट हैव ओवर एक्सर्ट माई सेल्फ. Then after a month, I started tremors in my hands. Again, being a doctor, you continuously होता था कि कोई continuously tremors, slow ऐसे tremors. hand shake होते थे. Yes. अच्छा. So at that time मुझे लगा because I'm a doctor, I तो okay ये तो old age की बीमारी है, शायद मुझे अभी symptoms आ रहे हैं क्या. I went to a neurologist. मैंने बोला ये टेस्ट तो करने पड़ेंगे. Why I'm having tremors? If you have seen Doctor Strange movie, तो same tremors. I mean, I couldn't control my hands. Yes. So I couldn't write anything. I couldn't sign. Or suddenly, one day I'm waking up and I'm having tremors. फिर again tests were run. सब कुछ हुआ. There was nothing in the test. फिर दूसरे तो डॉक्टर्स क्या कहते थे? डॉक्टर्स का क्या एक्सप्लेनेशन था? कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था. दे वर लाइक ओके लेट्स ट्राई सम मेडिकेशन. सो जब ट्राई का वर्ड सुना तब मैंने बोला नहीं लेट मी चेंज द न्यूरोलॉजिस्ट. तो अहमदाबाद के बड़े से बड़े न्यूरोलॉजिस्ट 3 से 4 को मैंने चेंज किया. वन आफ्टर द अदर. हर बार MRIs हो रहे, EEGs हो रहे, ये हो रहा है, वो हो रहा है, सारे टेस्ट हो रहे हैं, सब कुछ नॉर्मल आ रहा है. सिचुएशन बिकेम वर्स. देन माई हैंड स्टॉप्ड वर्किंग. They got paralyzed in a way. So मैं स्पून नहीं उठा पा रही हूँ, मैं खाना नहीं खा पा रही हूँ. My mom used to bathe me. मुझे वॉशरूम जाना है, मुझे मम्मी छोटे बच्चे को जैसे कराती है वैसे करा रही है, वो मुझे खिला रही है. I couldn't move my hands at all. मैंने ऑलमोस्ट 1 साल तक फोन यूज नहीं किया बिकॉज आई कुडंट होल्ड द फोन. आपने कुछ शायद कहा था खाना बनाने का आपको शौक था. yes. फिर वो भी बंद हो गया. Yes. Oh, you remember? How sweet. Yes, I love cooking. That's the stress buster for me. But I couldn't hold anything. And yes, that was, I mean, I got really scared. तो इससे आपके फिर mental health पे भी impact पड़ा होगा? Yes, in that situation also, I was very scared कि what if ये कभी ये हो क्या रहा है, सबसे पहले किसी को पता नहीं था कि ये चल क्या रहा है, what is the disease called. कुछ नहीं आ रहा था. So they all were clueless. एंड आई वॉज लाइक कि अगर ये डिजीज़ का ही किसी को पता नहीं है तो इसकी क्योर भी किसी को पता नहीं है. व्हाट इफ़ मुझे लाइफ लॉन्ग किसी पे डिपेंडेंट रहना पड़े. मेरी मम्मी मेरा सब कुछ कर रही है एंड यू नो आई डिडंट वांट दैट कि मुझे उसकी सेवा करने की बजाय वो मेरी सेवा कर रही है. सो आई वाज सो डिप्रेस्ड एट दैट टाइम कि अरे यार ऐसी ज़िंदगी मैं कैसे निकाल पाऊंगी एंड ऑल दैट. सो वो चल रहा था. देखिए फिजिकल हेल्थ जो खराब होती है तो उसका मेंटल हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़ता है और एक्चुअली रियलिटी में मेंटल हेल्थ का भी फिजिकल पे इम्पैक्ट पड़ता है. तो ये हम आगे जाके आई थिंक समझेंगे कि क्या था. सो देन वन ऑफ माय डियरेस्ट अंकल मिस्टर आशुतोष रावल, he came to visit me because he came to know about my situation and he came to visit me. हमने किसी को फैमिली में ज़्यादा ये बताया नहीं था because हम कुछ समझ ही नहीं पा रहे थे what was happening. And he mentioned your name कि see she is my friend and she basically works for children. So बच्चों के जो traumas होते हैं वो सब होते हैं but I'm not sure वो elders को help करते हैं या नहीं करते हैं. But let's just go and meet her once. तो क्योंकि मैं सब कुछ ट्राई कर चुकी थी तब तक. तब आपने दूसरी भी कोई मेंटल हेल्थ अप्रोचेस ट्राई किए थे? जैसे आपको लगा था कि ये मेंटल, एक मिनट, सो पहले हम ये समझते हैं कि जब फिजिकल जो इश्यूज होने लगे
आपको तब कब पता चला कि शायद मेंटल हेल्थ का भी हो सकता है, कि उसकी वजह से मेंटल हेल्थ इश्यूज हुए? मतलब कैन यू जस्ट एक्सप्लेन दैट लिटिल बिट, मेंटल हेल्थ because I know some of the doctors personally over here. तो मैंने यहाँ पे जो एक लास्ट मैंने जो न्यूरोलॉजिस्ट को कंसल्ट किया, ही वाज लाइक कि भूमि फ्रैंकली स्पीकिंग अभी कुछ मेडिकल साइंस में तो कुछ लग नहीं रहा है कि तुझे कुछ प्रॉब्लम है कि इस चीज को हम ट्रीट कर सकते हैं. सो दिस मस्ट बी साइकोलॉजिकल, यू शुड कंसल्ट अ साइकेट्रिस्ट. मैंने बोला ठीक है वो भी कर लेते हैं. देन आई कंसल्टेड 2-3 डिफरेंट साइकेट्रिस्ट ऑल्सो. The last psychiatrist, Dr. Suhash Doshi, he told me that, okay, this is completely psychosomatic disorder. Whatever you are feeling, whatever you are saying is not lie. लोगों को लग सकता है कि हाँ reports normal है, ये झूठ बोल रही है. She is not moving her hands because उसे नहीं करना है. Otherwise reports तो सारे normal है. बिल्कुल. और just एक नहीं, मेरे पास इतने ज़्यादा reports रहेंगे, right? आप खुद भी डॉक्टर हैं तो आपको तो yes, तो हर तरीके के reports मेरे सारे normal है. Then what is happening? Then he said no, this is true. This happens sometimes. लोगों को कई बार कम होता है, कई बार ज़्यादा होता है. This condition is called conversion disorder, जिसमें आपके psychological disturbances को आपकी बॉडी थ्रो करती है बाहर फिजियोलॉजी में, कि आपको कुछ ऐसे अनएक्सप्लेनेबल पेन होते हैं, कुछ डाइजेशन इश्यूज हो जाते हैं जिसको कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता, कोई ट्रीट भी नहीं कर सकता. आप कितनी भी दवाई लो वो ट्रीट नहीं होगा जब तक आपका रूट कॉज ट्रीट नहीं होता. He said you should seek a therapy and I told him कि हाँ मेरे अंकल के साथ मैं next week appointment है, मैं जा रही हूँ उनको देखने के लिए. Then he said okay you try over there, otherwise हम भी वो provide करते हैं counseling sessions and therapy. मैंने बोला ठीक है अगर मैं जा ही रही हूँ let me try, फिर हम देखते हैं. So at that point मुझे लगा कि हाँ, so there's my uncle and the psychiatrist, they both came together and told me कि no I need some therapy sessions. So that's when you started. तो तब आपने of course आप I can understand कि आपकी ये परिस्थिति थी कि जो भी मिले कुछ भी हो जाए, because अगर आपको नहलाना पड़ता है किसी को ये एज में, किसी को सब कुछ आपके लिए करना पड़ता है, तो दैट कैन बी अ वेरी वेरी ट्रॉमेटिक. और उससे डिप्रेशन, सेल्फ डाउट, कभी ऐसा कुछ लगा आपको कि जिंदगी ही बेकार है? Yes, of course लगा था, because I was a workaholic person. मैं बचपन से ही बहुत इंडिपेंडेंट रही हूँ. जब मैं स्कूल में थी my father taught me how to operate bank accounts. तो मैं 6th तो 7th स्टैंडर्ड में रहूँगी, मुझे चेक्स लिखना आता था, मुझे सब कुछ आता था. So मैं ट्रैकिंग पे ही भी गई हूँ जब बचपन से. I have been very independent. और जब ये सडनली आता है that you cannot, अगर पानी भी पीना है you have to ask कि कोई मुझे पानी पिला दो, so फिर आपकी थेरेपी जर्नी शुरू कैसे हुई? मतलब क्या क्या आपने उसमें समझा? आपके बिफोर स्टार्टिंग थेरेपी आपके दिमाग में क्या था थेरेपी का पर्सपेक्टिव? क्या होता है थेरेपी? एक्चुअली आई वाज बिट क्लूलेस. मैंने मूवीज में देखा था दैट पीपल टेक थेरेपी सेशंस, बट दैट इज स्पेसिफिकली व्हेन दे आर डिप्रेस्ड. सो सबसे पहले मुझे यही नहीं पता था कि मेरे बैक ऑफ माइंड में भी स्ट्रेस या डिप्रेस्ड या ऐसा कुछ हो सकता है. तो जब साइकियाट्रिस्ट ने मुझे बोला कि दिस कुड बी बिकॉज ऑफ दिस रीजन, आई वाज लाइक नो, मैंने तो अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा खराब सिचुएशंस देखी. आई डिडंट क्राई, आई डिडंट गॉट अपसेट. उसमें भी मैं स्ट्रांग होके निकली हूँ. देन आई डोंट थिंक मुझे डिप्रेशन है और आई एम स्ट्रेस. वर्क स्ट्रेस या थोड़ा बहुत लाइफ स्ट्रेस तो हर किसी को होता है, बट दिस इज नॉट समथिंग जिसकी वजह से मुझे इतना बड़ा. सो you felt that you had been very strong in certain challenging situations. Yes. ये आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात की जो बहुत लोग हमें कहते हैं कि मैं इतना सब मैंने एक्सपीरियंस किया पर मैं रोई नहीं, मैं रोया ही नहीं, तो मैं इतना स्ट्रांग हूँ. अभी आपका ये सब के बाद अभी आपका क्या इसका परसेप्शन है? That's the worst part. You are not the strongest. You are just hiding your emotions. और वो जिस दिन burst होता है बहुत खराब होता है. Never hide your emotions. Cry. So you wish you would have cried in those situations. Yes. So I had amazing childhood. तो उसमें कुछ नहीं था. But there were 2-3 incidents जहाँ पे there were challenging time. When at young age I lost my dad. So in an accident. How old were you when? I was 20s. 20s when you lost your dad. वो हम trauma event कह सकते हैं. Yes, trauma event. And it was an accident. और वो भी government negligence की वजह से उनका accident हुआ था. So it was sudden. My brother was studying. I just finished my bachelor's, and at that time I just came out of
abusive relationship. My ex was very abusive physically and mentally. And suddenly उसके एक वीक में आई एम लूजिंग माई फादर, तो तो back to बहुत back ज़्यादा यस trauma. वो ट्रॉमा हो रहा था. बट उस टाइम पे मुझे स्ट्रांग रहना था. करेक्ट. So, मम्मी के लिए, yes, भाई के लिए. yes. ये हमेशा हमने देखा है कि जो बड़ा बच्चा होता है ना फैमिली का, हमेशा उसके ऊपर वो खुद भी शायद एक प्रेशर डालता है कि मैं वीक नहीं पड़ सकता. जो भी सिचुएशन है, चाहे वो बच्चा लड़की हो या लड़का हो, फैमिली के लिए मुझे स्ट्रांग रहना है. तो इसी स्ट्रांग रहने के चक्कर में कई बार हमारे बॉडी को, हमारे स्पिरिट को जो ज़रूरत है जो एक्सप्रेस करने की, वो नहीं कर पाते हैं. तो आपने क्या किया स्ट्रांग रहने के चक्कर में? आपने क्या क्या? I suppressed my feelings. Of course, I had some dreams, bad dreams, everything. But मैंने उसको इग्नोर किया. Then I kept myself busy. हाँ, ये एक कोपिंग स्ट्रक्चर है. हम लोग बिजी हो जाते हैं सोच के कि बिजी होंगे तो वो दुख नहीं महसूस होगा, वो ट्रॉमा नहीं के बारे में सोचना नहीं पड़ेगा, तो हमने उसको सोफे के पीछे छुपा दिया. एस्केप मैकेनिज्म जो मैं हर चीज में पहले से करती आई हूँ, बट रियलाइज अब मैं कर रही हूँ. लेट इट बी एनीथिंग, लेट इट बी माई वर्क, लेट इट बी माई रिलेशनशिप्स, लेट इट बी माई लाइफ. आई एस्केप. जहाँ पे मुझे कंफर्टेबल सिचुएशन नहीं मिलती, आई जस्ट move myself out of that frame. So this pattern you noticed later. Therapy के बाद ये सब समझ आई. Yes. So I love photography. So I went in the morning 7 in the morning कि मैं 7 से 9 photography सीखूंगी, classes करूंगी. 9 बजे से I'll start working. And from 9 o'clock till 8 in the evening I used to work. फिर 8 बजे आना है, घर पे जाना है, खाना खाना है, फिर पेशेंट्स के कॉल्स आते हैं. तो आपने अपने आप को पूरा बिजी रखा? पूरा डिवोटेड इन वर्क. ये डैड के डेथ के बाद? वर्क, यस, वर्क. So I mean there was no need for me to work that much. पापा ने उतना मैनेज करके ही दिया था that I could study, my brother could study, and we could survive without even working. But that was, as I mentioned, my escape mechanism कि मुझे वहाँ से बाहर निकलना है उस situation से. So and I used to exhaust myself a lot. So वो चीज़ चल रही थी. एंड यस जब एक सिटिंग हुआ था मेरा गुंजन सर के साथ. सो मैं मेरे फादर के डेथ वाला जो प्रॉपर जो सिनेरियो था, जो एक दैट पीस वाज स्टक इन माय हेड. सो वो गुंजन सर के साथ मेरा वो सिटिंग था. एंड वेरी ब्यूटिफुली ही जस्ट let me cry, let me think about everything, bad, good, everything. And I still follow the same process whenever I miss him. I'm sorry for this. No, please, it's okay. Again, we have agreed that we should not crying be suppressive. is Don't apologize for normal. crying. Yes. Crying is normal. So whenever I miss him, I follow the same process. And I'm happy again. वंडरफुल. तो उन्होंने जो मतलब जो आपने प्रोसेस की, एक तो हमें स्पेसिफिक्स में नहीं जाना है, पर बिफोर थेरेपी वाली भूमि और आफ्टर थेरेपी वाली भूमि में 2-3 चीजें जानना चाहती हूँ कि आपकी समझ कैसे बदली, मतलब व्हाट चेंज्ड अबाउट यू? सो पहले अगर कोई मुझे पूछता था व्हाट इज द प्रायोरिटी, तो मेरे पास पूरी एक लिस्ट होती थी दैट ओके मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है. नाउ इफ समवन आस्क मी व्हाट इज द प्रायोरिटी, आई विल से माय हेल्थ, मेंटल, फिजिकल, माय वेलबीइंग. इफ आई एम माय ओन प्रायोरिटी, मेरे सराउंडिंग्स में सब कुछ मैनेज्ड होगा. आई विल नॉट रन अराउंड कि मुझे ये भी करना है, ये भी करना है. वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा. आई विल नॉट इग्नोर माई सेल्फ नाउ. कि अब मुझे ऐसा नहीं लगेगा कि मैं कभी भी अगर मुझे कोई पेन हो रहा है या इफ आई एम फीलिंग लो, मैं उस इमोशन को इग्नोर नहीं करती हूँ. आई एक्चुअली आपकी टीम ने मुझे बहुत अमेजिंग रेमेडीज दी है. whenever I feel anxious, whenever I feel low in confidence. ये phases आते हैं, हर किसी के लाइफ में ये phases आते हैं where you feel so low that nobody is there to listen. I talk to myself, I talk to God, I talk to any object in the room, and I just vent it out. So वो हो जाता है. थेरेपी में ऐसा क्या हुआ और क्या उससे क्या चेंज आया? मतलब वो आपने थेरेपी तो आए थे बराबर, थेरेपी के लिए आपने कहा चाइल्डहुड ट्रॉमा तो था नहीं, पर ये जो ट्रेमर्स थे हाथ में, थेरेपी में ऐसा क्या हुआ
और क्या फिर वो ट्रेमर्स गए उससे कि क्या, मतलब जस्ट टेल अस व्हाट रियली हैपेंड इन द थेरेपी प्रोसेस फॉर यू? सो थेरेपी मेरा चला था ऑलमोस्ट 2-3 months और एट द सेम टाइम मेरे साइकेट्रिक मेडिकेशंस भी चल रहे थे फॉर 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 कन्वर्जन डिसऑर्डर जो उन्होंने बोला था, ओके, हाँ. राइट? सो And was your psychiatrist also open to taking therapy? I mean, he Yes, said yes, that you he should said, take he therapy. suggested. And did he also say that he would wean it off eventually if therapy Yes, worked? Oh, that's yes. wonderful. That's So wonderful. और शुरुआत से ही, because I said I'm a doctor, he's also a doctor, so we have a different bonding, we know each other. So he said कि ठीक है, बहुत minute dose पे ही तुमको रखते हैं, बहुत ज़्यादा medications तुम्हें नहीं देनी है, बहुत low dose पे रखते हैं, but let therapy work. अगर वो नहीं हुआ then we have medications. Correct. Absolutely. सो बहुत लो डोजेज पे मुझे रखा गया था एंड वो जब थेरेपी चला इवेंचुअली मेरे हाथ फिर ऐसा हुआ, जो हैवीनेस थी वो कम होने लगी, देन जैसे वो आया था वैसे ही वो गया भी. सो लास्ट में मुझे ट्रेमर्स थे एंड देन आई थॉट कि हाँ फिर आई कुड लिफ्ट माई हैंड्स, आई कुड होल्ड थिंग्स, फिर वो सारी चीजें धीरे धीरे होने लगी. तो थेरेपी ट्रेमर्स पे की गई कि थेरेपी और किसी चीज पे की गई थी? ट्रेमर्स तो थे ही, बट दैट वाज द फिजिकल आउटकम ऑफ मेंटल यू नो डिस्टर्बेंस. तो थेरेपी में आपने किस किस चीजों पे, आप अगर ऊपर ऊपर का बता सके कि किस किस चीजों पे काम किया जिसको आपको लग रहा है कि दैट हेल्प्ड यू, और दैट like, you know, maybe you may even remember कि after a couple of sessions something changed or something different happened or this session was very powerful. So what was that because therapy is a very generic word, you know. Therapy means people think somebody is healing you, or therapy means people think that you are talking only to and you know getting counseling done, or somebody feels therapy means somebody is massaging. What was your experience so in therapy? I had different blocks in my mind जो कि clear करे गए. There were different methods. For example, I would mention 1 or 2 major incidents जिसके लिए मुझे वो थेरेपी दी गई थी. One was my father's death. तो उस चीज़ को मैं आज तक एक्सेप्ट नहीं कर पाई हूँ. So I was being taught how to accept it, how to you know live with it. Simply live with it. It has happened. You cannot change anything. So just live with it. Then I also had some, you know, relationship issues, which everybody has. Yes, everybody has. In whatever be the initial years, relationship yes, also. everybody has. हमें अपने पेरेंट्स के साथ भी तो झगड़ा क्या होता है, उसमें भी sibling के आपने साथ. कुछ दबा के रखा था चीजें जो बाहर आई के? Yes, I was suppressing so many feelings, you know. There was because at some point हम लोग थोड़े long distance में भी रहते थे. So long distance, then together, then again long distance after getting married. So वो थोड़ा difference आता था. So सारी चीजें मैं नहीं बता सकती थी because time zone different है, hardly आधा घंटा बात कर रहे हैं, उसमें भी ये सारी चीजें नहीं बतानी थी. तो उस पे भी हमने काम किया. So now अगर मुझे प्रॉब्लम है कि अरे एनिवर्सरी आ रही है, उसने गिफ्ट क्यों नहीं दिया, नाउ आई एम विथ ओपन माइंड, मैं उसके पर्सपेक्टिव से भी सोच रही हूँ कि क्यों नहीं दिया, शायद इसलिए नहीं दिया, इट्स ओके, दूसरे दिन दे देगा, चलेगा, यू नो. और पहले ये बहुत इफेक्ट करता था. ओ माय गॉड, मेरे सारे फ्रेंड्स को ये हो रहा है, ये वो लोग घूमने जा रहे हैं, उसका हस्बैंड उसके लिए ये कर रहा है, वो कर रहा है, मेरा वाला है क्यों इतना लेट बैक है एंड ऑल दैट, राइट. तो आपको बहुत इसकी वजह से अंदर क्या था, दुख था कि गुस्सा था कि सब था? एवरीथिंग. और ये आप दबा के रखा था मैंने, यू नो. कुछ सर्टेन एक्सपेक्टेशंस होते हैं, शायद उसके भी मुझसे होते हैं. दबाने का क्या कारण था? स्ट्रांग बनने के लिए कि मतलब मम्मी को क्यों परेशान करना, ऐसा भी कुछ था? वही था, स्वभाव था आपका? एस्केप मैकेनिज्म, यू नो. आई डिडंट वांट कि अभी डिस्कस करोगे तो फिर यही होगा. तो कन्फ्रंटेशन का डर था आपको? यस, अ लॉट. फियर ऑफ कन्फ्रंटेशन, ये बहुत कॉमन है. इनफैक्ट लोगों को हमेशा लगता है किसी के साथ झगड़ा नहीं करना चाहिए, किसी को ना नहीं बोलना चाहिए, किसी के साथ कन्फ्रंट नहीं करना. कुछ आर्ग्यूमेंट हो गई तो इसलिए लोग बहुत दबाते हैं. लेट इट बी. सो वैसे ही था मेरा. बट थेरेपी में जो आपने कैसे किस्म की थेरेपी थी, मतलब उसमें क्या होता था रफली? आप मतलब डिटेल नहीं, पर जस्ट लोगों की जानकारी को, लोगों को क्यूरियोसिटी कि थेरेपी होता क्या है. तो थेरेपी में होता क्या था? सो दे लेट यू डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट यू वांट टू. अगर फॉर एग्जांपल मुझे मेरे बॉयफ्रेंड के साथ झगड़ा भी करना है, मैं थेरेपी सेशन में विदाउट हिज प्रेजेंस वो कर सकती हूँ, राइट. मेरा जो पास्ट ब्लॉकेजेस थे, व्हेन आई वाज लाइक आई कुडंट एक्सप्रेस माई सेल्फ, मैं वो कर सकती हूँ. मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस जो लो था वो मैं कर सकती हूँ.
वन अमेजिंग थिंग वॉज दैट कि जब मुझे ये थेरेपी सेशन के लिए प्रिपेयर किया जाता था, मेरे फेवरेट म्यूज़िक, मेरे फेवरेट बेवरेजेस, लाइक यू कैन सी राइट, मेरे फेवरेट बेवरेजेस, मेरा फेवरेट म्यूज़िक, सारी चीज़ें यूज़ करके किया जाता था. सो इट्स नॉट जस्ट मी टॉकिंग टू समवन और मी जस्ट लेटिंग इट कि मैंने किसी को नहीं बताया तो आज मैं ये बता देती हूँ और मेरा मन हल्का हो जाएगा. उससे कुछ टाइम तक ही हल्का होगा, फिर वो वापस आ जाएगा. तो ये आप कह रहे हो जो रीएसोसिएट कर की गई थी वो मेमोरी कुछ आपकी Yes. अच्छी पसंद वाली Yes. चीजों के साथ. तो जो मेरा बुरा एक्सपीरियंस था किसी भी बंदे के साथ या बुरा सिचुएशन था, उसको डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखना, समझना और हर किसी का इम्पोर्टेंस मेरी लाइफ में क्या है वो भी मुझे समझाया गया था. सो या वो सारी और वो जो डैड का जो ट्रॉमा था उस हाउ डिड यू ओवरकम? आई डू फील यू हैव ओवरकम इट फुली? यस. यस. एंड उसका कितना रोल था आपकी जो फिजिकल कंडीशन में? आपने दो चीज कही, एक तो रिलेशनशिप जो आपका कहा आपके इश्यूज थे और दूसरा डैड का जो डेथ हुआ और उसके साथ आपने जिस तरह से डील किया, ये दोनों अकॉर्डिंग टू व्हाट यू हैव सेड वर द मेजर टू थिंग्स. Major things. हाउ बिग वाज दैट डैड्स इंसिडेंट इन I mean, I could say the biggest. Okay. that In was the what way do biggest. you feel that had affected you? Looking back, आप जैसे पीछे देख के अभी बता रहे हो, तो क्या लगता है आपको? So there were many challenges because I was very young. Even though दुनिया काफ़ी देखी थी बट डिफरेंट एंगल से अब मुझे देखने को मिल रही थी. यू नो, जब लोग आप फ़ोन करते हो, जब लोग भागते हैं आपसे, you know, they stop picking up your call. When I was getting married, I remember there were only one or two. Uncle was the one who answered, who used to ask, okay भूमि क्या करना है अब शादी के टाइम में, you are getting married, खुद से ही कर रहे हो सब प्लान. बट आई हैव सम रिलेटिव्स जो फ़ोन उठाने बंद कर देते, शायद पैसा मांग लेगी, शायद हेल्प मांग लेगी, राइट. सो देन You felt hurt. That Yes. affected you. yes कि my father helped them so much, they were very dear to us, you know, हर अच्छी बुरी काम में आप हमारे साथ रहते हो. एंड नाउ what has happened कि आप हमें इतना इग्नोर करने लगे हो, राइट. तो इससे आपको बहुत शॉक भी लगा होगा. आई वॉज लाइक ओके, जो बोलते हैं ना कि तब पता चलता है कि हु इज योर डियर वंस एंड हु आर नॉट. जो सगा कौन છે કોણ સગા નથી કોણ છે બરાબર છે એ ત્યારે ખબર મુસીબતના પડે. ટાઈમમાં તમને કોણ તમને હેલ્પ ખબર કરે છે પડે, કોણ right? બરાબર છે. Even though I didn't want financial help, but yes, there were some amazing people out of the blue who came and they didn't ask, do you want money? They handed me over the money. કે જ્યારે કમાઈને ત્યારે મને આપજે પાછું, right? એટલે all these things added to the trauma of losing your dad. Yes. Yes. And how did therapy change it? Like हम जानते हैं कि आपकी मेमोरी तो नहीं डिलीट हो सकती है, राइट. जो हुआ डैड के साथ और जो एक्सीडेंट हुआ, पता नहीं कितनी हद तक आपने जो भी आपकी विजुअल मेमोरी होगी, शायद Right. आपकी किनेस्थेटिक मेमोरी होगी, Right. तो वो मेमोरी तो है, तो थेरेपी से बदला क्या? थेरेपी से उस चीज़ से अब मुझे हर्ट नहीं होता. ऑफ कोर्स मिस करती हूँ बट आई डोंट फील बैड फॉर दिस सिचुएशन. ओके, हर किसी को जाना है, Correct. सो इट वाज हिज टाइम टू गो. बट नाउ आई सी द पॉजिटिव साइड. ही प्रिपेयर्ड मी एंड माय यंगर ब्रदर इन सच अ वे दैट उनके जाने के बाद वी डिडंट नीड एक्चुअली एनीवन. वी कुड मैनेज एवरीथिंग. बहुत सारे लोग ऐसे आते थे, अच्छा गवर्नमेंट की वजह से हुआ है ना, लॉयर्स स्पेसिफिकली जिनको हम जानते भी नहीं थे, हम गवर्नमेंट पे केस करते हैं, हम आपको कॉम्पनसेशन दिलाएंगे 10 लाख का, 50 लाख का, इतने लाख का. आई वॉज लाइक ड्यूड, कोई भी अमाउंट मेरे डैड के लॉस को कंपनसेट नहीं understand. कर सकता. एंड आई डोंट वांट मॉनेटरी कंपनसेशन. हाँ, मैं ये ज़रूर चाहूँगी कि वो जो था उसको तो proper ये सब action जो लिया आपकी जाए. समझ थी ये थेरेपी के पहले भी थी कि ये सब मतलब व्हाट फ्रॉम सी लोग जो सुनने वाले उनको शायद ये समझना चाहते होंगे कि आप थेरेपी शुरू की आपने विद ट्रेमर्स, आप खुद कुछ नहीं कर सकती थी, शायद डिप्रेशन भी हो सकता है कि भाई मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ, मेरी फेवरेट चीज़ें नहीं कर सकती हूँ. थेरेपी लेने से क्या क्या लेयर्स पील हुए और व्हेन डिड यू स्टार्ट सीइंग द चेंज? सो एक्चुअली मैंने वही बोला कि जो सिचुएशन होती है उसके बहुत डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं. हाँ हाँ हाँ. यू आर इन अ बैड सिचुएशन बट इट ऑल्सो हैज समथिंग गुड हिडन,
राइट. सो ऑफ कोर्स डैड नहीं थे, बट वी बिकेम वेरी स्ट्रांग, इंडिपेंडेंट. या पहले नहीं देख पाती थी? पहले मैं नहीं देख पाती थी ये सारी चीज़ें. यू नो, ऑफ कोर्स अच्छा हुआ जो एक्चुअली जो सगे थे वो हाईलाइट हो गए, और जिससे हमें डिस्टेंस रखना था वो भी हाईलाइट हो गया. सो येस, वो है. देन विद इन अ ईयर वी बॉट डैड्स ड्रीम हाउस. जैसा वो सोचते थे कि हम, मेरे घर के बाहर एक गार्डन होना चाहिए, मुझे बाहर एक झूला चाहिए, वी बॉट दैट, मी एंड माई ब्रदर. So that's it. So now I see in every situation, अगर मेरा एक्सीडेंट भी हो रहा है, I see something good in it. That कि अब मैं सब कुछ नेगेटिव नहीं लेती हूँ. और इससे फिजिकल हेल्थ में क्या फर्क पड़ा? You can see. People, you know, मतलब People can जो see. Yes, you can use. I mean, if I have my old pictures, you can show it also. Yes, sure. यू नो, उस टाइम पे मुझे अच्छे कपड़े पहनना मन ही नहीं होता था. आई हैव वार्डरोब फुल ऑफ क्लोथ्स, मेकअप, ज्वेलरी लाइंग डाउन. वो नहीं होता. ओके ठीक है, नहीं होना रेडी. फ्रेंड्स जब बुलाते हैं कि चलो मिलते हैं, लेट्स गो आउट फॉर अ कॉफ़ी, आई यूज टू अवॉइड देम. नहीं ठीक है, मुझे घर पे आराम करना है. सो आई मीन थोड़ा इंटरेस्ट कम होने लगा था चीज़ों में. अभी सोशल मीडिया भी अगर मैं देख रही हूँ तो आई एम जस्ट स्क्रोलिंग इट डाउन. आई मीन मुझे उसमें कुछ अच्छा भी नहीं लग रहा, कुछ बुरा, मैं काम भी नहीं कर पाती थी. सो वो सारी चीज़ें थी कि आई वॉज लूजिंग इंटरेस्ट इन एवरीथिंग. वो कब बदलना शुरू हो गया? आफ्टर द थेरेपी, आफ्टर सम टाइम, येस. हाउ मेनी मंथ्स, सेशंस, कुछ याद है? धीरे, ऑब्वियसली इट वुड बी अ ग्रेजुअल. 5-6 months. 5-6 months. और ऐसा कोई पर्टिकुलर सेशन है जो आपको अभी भी याद है? ऐसी कोई पर्टिकुलर प्रोसेस है जिससे लग रहा है कि आपको एक ब्रेक थ्रू मिला हो, या दैट वाज वेरी पावरफुल? ऐसा कुछ था कि इट वाज स्लोली एवरीथिंग पुट टुगेदर? मतलब क्या स्लोली एवरीथिंग पुट टुगेदर. बट येस, कुछ सेशंस ऐसे थे जिसमें यू गाइस टॉट मी कि हाउ टू एक्सप्रेस माई सेल्फ. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मुझे किसी के सामने ही एक्सप्रेस करना है. नाउ आई विल नॉट सप्रेस एनीथिंग. अगर मुझे किसी से बुरा लग रहा है, मैं अच्छे वे में वो कन्वे कर देती हूँ दैट ओके दिस इज नॉट राइट, आई एम नॉट अग्रीइंग टू दिस, बट यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट टू. सो हाउ डिड दैट चेंज कम अबाउट? ऑफ कोर्स, एज आई मेंशन, आई स्टार्टेड एक्सेप्टिंग एवरीथिंग. यू नो कि हाँ ये है. तो ऐसी कोई प्रोसेसेस आपको करवाई गई थी जिसमें रिग्रेशन सेशन वाज देयर किया था? हाँ, फिर वही जो मुझे वो टर्मिनोलॉजीज याद नहीं है वो क्या हाँ, नहीं कोई बात नहीं, बट एटलीस्ट सो इट वाज नॉट जस्ट बाय टॉकिंग एंड काउंसलिंग. यस, देयर वर सम प्रोसेसेस डन. वन फनी थिंग, आई मीन आई ऑफन टेल माय हस्बैंड दिस कि तुझ पे जो भी गुस्सा था ना वो मुझे एक पिलो पे निकलवा. अच्छा, तेरा सर बच गया, मैंने पिलो को फोड़ दिया. ओके, तो उससे बहुत फायदा हुआ. उससे फायदा हुआ. क्या आपको फिर यही लगता है कि ये जो सारा अपने बॉडी में रखा था दैट वाज कन्वर्टेड इनटू द बॉडीज प्रॉब्लम्स? Yes. तो कन्वर्जन जो हम कहते हैं Yes. सिंड्रोम, वो शायद वो था कि Yes. जो अनएक्सप्रेस गुस्सा था एक्स के लिए, फादर की डेथ के ऊपर, रिलेटिव्स के ऊपर, वो सारा अपने बॉडी में जो दबाए रखा था, उससे बॉडी में इम्बैलेंस, न्यूरोलॉजिकल, सपोजिडली न्यूरोलॉजिकल. और जैसे जैसे वो हील होने लगा, मेरी बॉडी हील होने लगी. पहला चेंज आपको कब दिखा? कब आपको ऐसे लगा कि अरे थेरेपी काम करे? बिकॉज बहुत से लोगों को ऐसा प्रश्न होता है कि कब पता चलेगा कि दिस इज एक्चुअली वर्किंग और नॉट? एक्चुअली काफ़ी टाइम के बाद आई थॉट कि ओके दिस माइट बी बिकॉज ऑफ थेरेपी, बिकॉज आई वॉज इन अ सिमिलर सिचुएशन जो पहले भी था मेरे साथ. एंड यू नो आई यूज टू लाइक अरे નથી કહેવું જવા દે, નથી બોલવું કંઈ, હું ઠીક છે ચૂપ રહું છું. And at that moment I blasted, no this won't work, this is not correct and I will not accept it. And I was like okay, now I'm more confident about myself. હવે મને ડર નથી કે સોસાયટી એક્સેપ્ટ કરશે કે નહીં, ફેમિલી વાળા એક્સેપ્ટ કરશે કે નહીં, યુ નો. એટલે એ કોન્ફિડન્સ આવી ગયો, એ તમને ત્યારે રેકગ્નાઇઝ થયું કે ઓકે નાઉ આઈ એમ એબલ ટુ સ્પીક આઉટ. Now I'm able to speak out, now I'm able to express myself, my likings, dislikes, everything. અગર યુ નો પહેલાં હું અપ્રિશિએટ બી એટલું બધું નહોતી કરતી લોકોને, મને એવું લાગતું હતું ઠીક છે બધા જ કરે છે ને. નાઉ આઈ અપ્રિશિએટ પીપલ અરાઉન્ડ મી. One day I just called up my HR and I said, I just want to say thank you. And he was shocked. What are you saying, doctor? I said, I just want to say thank you. And he said, for what? I said, for nothing. I mean, and for everything actually.
but I just want to say thank you. And he was very confused for one entire day and he was like क्या भाई हुआ है पहले अल्टीरियर ये कुछ तो अल्टीरियर मोटिव हो सकता है या तो इसका कुछ घिसा क्या हुआ है मुझे बताओ. I was said I am starting from today, I am starting being grateful to every single person around me और मैं स्टार्ट कर रही हूँ आपसे ये चीज़. ही वॉज लाइक वाई. मैंने बोला नहीं बस ऐसे ही आपसे, बिकॉज सबसे ज़्यादा दिक्कत मुझे आपसे ही होती है, छुट्टी चाहिए नहीं मिलती, जल्दी आओ जल्दी जाओ, ये सारी चीज़ें होती है. सो आई एम स्टार्टिंग दिस लाइफ चेंज विथ यू कि हाँ ठीक है वट एवर हैपन्स, आपको भी काम करना है, मुझे भी इवेंचुअली काम करना है. एंड उसके बाद उसका अप्रोच मेरे साथ बहुत बदल गया. क्या बात है. एंड आई स्टार्टेड डूइंग दिस विथ एवरीवन. आई स्टार्टेड सेइंग थैंक यू फॉर नथिंग, फॉर नथिंग. और उनको शायद वो रियलाइज होता होगा कि यार समबडी हैज़ अप्रिशिएटेड मी, या फिर मैंने ये शायद किया होगा इसलिए मुझे थैंक यू बोला है एंड एवरीथिंग. सो वो चीज़ हो रहा है. आपकी मदर ऑब्वियसली फैमिली मदर ब्रदर को बहुत कंसर्न हुआ होगा आपकी हालत. तो थेरेपी के बाद उनके क्या विचार हैं इसके बारे में? पहले उनके क्या विचार थे? वर दे ओपन के गो फॉर थेरेपी? और जिस सिचुएशन में हम थे, आई मीन देवर लाइक कि जो हो सकता है वो करो, राइट. बट हाँ थेरेपी के लिए वो मिसकंसेप्शंस है अभी भी कि सिर्फ डिप्रेस्ड लोग करते हैं, सिर्फ पागल लोग थेरेपीज करते हैं, व्हेन शायद उसमें सिर्फ बातें ही करने ही रहती है. बट डिप्रेशन, इफ डिप्रेशन का भी अगर हम डेफिनेशन देखें तो डिप्रेशन इज नॉट समथिंग कि वो आपको दिखाई देगा लोगों में. A person can be happy, a person can be eating in a fancy restaurant wearing good clothes, but he could be depressed. So वो आइडेंटिफाई करना बहुत प्रॉब्लम है. सो मेरी फैमिली को भी ये पता नहीं चला, मुझे भी ये पता नहीं चला कि मुझे कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकता है, राइट. बट देन इवेंचुअली दे वर लाइक कि तू हमें बता, तू ऐसा कुछ है तो हमारे साथ शेयर कर कुछ. बट हाँ अभी वी आर वेरी मच ओपन. एंड मेरे फैमिली में, मेरे फ्रेंड्स में, देयर आर सो मेनी पीपल जिसकी लाइफ को देख के आई इंस्पायर देम कि ड्यूड गो आउट, टेक थेरेपी सेशंस, टेक हेल्प, यू नीड हेल्प. एंड हेल्प मीन्स इट्स नॉट जस्ट लाइक यू आर टॉकिंग टू मी और जस्ट आपके मन से वो हल्का हो गया, वो नहीं होता. यू नीड टू टेक सर्टेन स्टेप्स उस चीज को, उस ब्लॉकेज को बाहर निकालने के लिए. मतलब कोई प्रोफेशनल ट्रेन के पास जाना है जो इसका करे. हाँ. और क्या आपको लग रहा है कि कोई ये ट्रॉमा, ऑब्वियसली आपकी जो फिजिकल कंडीशन है वो ट्रॉमेटिक इवेंट्स की वजह से हुई थी, और फिर जब वो ट्रॉमा इवेंट्स आपके माइंड में जो भी रिवायर किया, मैं इसलिए बता रही हूँ बिकॉज ये प्रोसेस हम जानते हैं कि हम इस तरह से कर सकते हैं कि भाई ट्रॉमा इवेंट की वजह से जो बॉडी में इम्पैक्ट पड़ता है उसको हम ओवरराइट या रिकंसोलिडेट कर सकते हैं, तो फिर उसकी इम्पैक्ट भी बॉडी में आगे जाके चेंज हो जाती दिखती है, राइट. कितने पहले आपकी कोई अलग इंप्रेशन थी थेरेपी के बारे में और थेरेपी के अनुभव के बाद इंप्रेशन बदली है? फ्रेंकली स्पीकिंग थेरेपी के बारे में मैंने इतना ज़्यादा सोचा ही नहीं था, सुना ही नहीं था. जैसे मैंने देखा कि हाँ डिप्रेस्ड पीपल गो एंड सीक थेरेपी और वहाँ पे जाके वो सब बोलते हैं, थेरेपिस्ट सब लिखता है और सब ठीक हो जाता है. फिर मुझे लगा कि शायद ऐसा भी होता है, दे गिव सॉल्यूशंस कि नहीं आप ऐसे सिचुएशन है तो यू डू दिस, ऐसे सिचुएशन है यू डू दिस. बट वो पूरा अलग होता है. इट्स नॉट लाइक दैट. यू हैव आंसर फॉर योर ओन प्रॉब्लम्स. आपको ही पता है कि आपकी प्रॉब्लम का आंसर क्या है. थेरेपी इज समथिंग जो उसको जो हेल्प करता है कि आप उस चीज़ को देख पाओ कि ओके दिस इज द आंसर और ये यहाँ पे ही था, आपको सिर्फ देखना था. तो आपको खुद अपना आंसर पता था. यस आई न्यू कि जैसे मैंने बोला एस्केप मैकेनिज्म जो मैंने इजीली बना के रखा था अपनी लाइफ में, आई न्यू कि मैं ये करती हूँ बट वो मुझे नहीं करना चाहिए या मुझे अभी वो मेरे लिए अभी नॉट मच बट समटाइम्स yes. वो सालों की आदत है ना, वो नहीं छूटे. टाइम समटाइम्स यस बट सी वी कैन नॉट कंप्लीटली चेंज, राइट. बट एज लॉन्ग एज वो चेंज से हमारी लाइफ ज्यादा थोड़ी फंक्शनल हो जाती है, हमारे रिश्ते थोड़े फंक्शनल हो जाते हैं, तो आई थिंक दैट इज गुड इनफ. आपकी थेरेपी लेने के बाद आपके रिलेशनशिप्स में, आपके वर्क में क्या डिफरेंस? अमेजिंग डिफरेंसेस. बहुत ज़्यादा वो शुरुआत के जो ईयर्स होते हैं मैरिड लाइफ के, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं बिकॉज जिसके साथ आप सिर्फ 4-5 घंटे दिन के बिता देते हैं बीइंग योर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड और बीइंग फियांसी,
अभी आप 24 घंटे उसके साथ रह रहे हो, उसकी फैमिली के साथ रह रहे हो, अभी उसकी कुछ आदतें आपको पसंद नहीं है, उसको आपकी आदतें कुछ पसंद नहीं है, बट यू हैव टू एक्सेप्ट इट। हाँ, तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा होती थी, बट अब वो नहीं होता, अब वो नहीं होता, अब क्योंकि वो बदल गया है? पीसफुल। नहीं, nobody has changed। एग्जैक्टली। मैं भी नहीं बदली हूँ, वो भी नहीं बदला तो है। क्या बदला है फिर? आई डोंट नो, मे बी नजरिया एक दूसरे को देखने का, मे बी सिचुएशन को समझने का, बट इट्स वेरी पीसफुल नाउ, वेरी पीसफुल। अब हमें बहाने, यस टच वुड, अब हमें बहाने ढूंढने पड़ते हैं झगड़ने के लिए। वी आर सिटिंग सम डे एंड वी आर लाइक, अरे बहुत बोरिंग लाइफ चल रहा है, चल झगड़ लेते हैं। क्या बात है। यू डू समथिंग जिससे झगड़ लेते हैं, right? अच्छा, तो But झगड़े कम हो गए, झगड़े रिश्तों कम में। हो गए। इवेंचुअली जो फीलिंग्स, जो बॉन्ड, जो प्यार था, वो अब स्ट्रांग हो रहा है धीरे धीरे, और अब और भी वो फिर हो आप रहा दोनों में है। से आपने ही थेरेपी ली है? हाँ, just उसने me, नहीं ली है? उसने नहीं ली है। हाँ, तो भी ये बदल सकता है। तो भी ये क्योंकि बदल बहुत से लोग, मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि बहुत से लोग ये मानते हैं कि यार हमारा जो स्पाउस बदलेगा ना तो ही मेरी लाइफ सुधरेगी, हमारा स्पाउस अगर ठीक होगा तो ही मैं खुश रहूंगी, तो ही हमारी शादी बच पाएगी। तो आपका Yes. इसमें क्या विचार है? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि दोनों ही डिफरेंट लोग हैं, डिफरेंट एटमॉस्फेयर में बड़े हुए, डिफरेंट पेरेंट्स, डिफरेंट एजुकेशन, यू नो, सोच अलग है, ठीक है। हम भाई बहन की सोच भी सेम नहीं होती, तो हस्बैंड वाइफ की कहाँ से होने वाली है? बिल्कुल। राइट, लाइक्स डिसलाइक्स अलग है, बट उसको कैसे साथ में चलना है, अगर दो में से एक ने भी सीख लिया, अगर दो ने सीखा तो बहुत अच्छा है, दो में से एक ने भी सीख लिया तो भी बहुत पीसफुल हो जाता है। क्या बात है। देखिए, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज कि जरूरी नहीं है कि Yes. दोनों जन थेरेपी लें, एक जन भी लेता है तो आपके अनुभव आई में तो- हाईली रेकमेंड, अभी जिसकी भी शादी होने, आई मीन मेरे ग्रुप में तो सबकी ऑलमोस्ट हो गई है, बट द यंगर वंस जिसकी भी शादी होने वाली है, थेरेपी की जरूरत नहीं है। रिमूव द वर्ड थेरेपी, बट गो फॉर कपल काउंसलिंग बिफोर गेटिंग मैरिड। सो यू विल अंडरस्टैंड ईच अदर इन अ बेटर वे कि हाँ, मेरे घर में पहली बार आई है, पूरा चेंज हो रहा है, तो उसको मुझे कैसे कंफर्ट करना है। एंड द गर्ल विल ऑल्सो रियलाइज कि हाँ, उसको मुझे भी लेके चलना है, फैमिली को भी लेके चलना है, तो बैलेंस बना के चल रहा है वो, तो उसको भी ज़्यादा परेशानी ना हो, तो दैट अंडरस्टैंडिंग विल डेवलप। और थेरेपी से आपके वर्क में कोई फर्क आया है? आपके रिश्ते? हाँ, आई एम मोर कॉन्फिडेंट, आई मीन एवरीवन, बिकॉज जब मेरे हाथ काम नहीं कर रहे थे, आई वाज ऑन अ करियर ब्रेक, मैं कुछ कर ही नहीं पाती थी, एंड आई कुडंट राइट, आई कुडंट मूव माय हैंड्स, तो ऑफ कोर्स आई वाज ऑन अ करियर ब्रेक। और सेम जगह पे, सेम ऑफिस में आई रीजॉइंड आफ्टर गेटिंग। सो एज आई मेंशन, मेरे एचआर से लेके माय एक्स मैनेजर, एवरीबडी वाज लाइक, what has happened to you? I mean, जब तुझे पहले ये सिचुएशन होती, you used to get panic और ये सब, अब now you are like, okay, ठीक है, ये हो जाएगा, no problem, ये हो रहा है, सब managed है, and you are so chilled back, relax, more confident. वंडरफुल। कि हाँ, so वो है, अब मैं फोर्थ फ्रंट पे होती हूँ, चाहे कोई भी सिचुएशन क्या हो, बात है, letting वेरी me- गुड, वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल, एक्सेलेंट। इज देयर एनी पर्टिकुलर आपके अनुभव से आपकी जो पर्सनल जर्नी रही ये थेरेपी की, या जो भी आप बोलो, कोचिंग, थेरेपी, जो भी बोलो, उस लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? लोग जो शायद आपकी जैसी परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, जिन्होंने अपना फादर मदर खोया है या सिबलिंग खोया है और शायद उसके ट्रॉमा में अभी भी, या लोग जिनको शायद ऐसे फिजिकल इश्यूज हैं जो डायग्नोज ही नहीं हो पा रहे, आपका क्या मैसेज रहेगा? यस, ऑफ कोर्स, गो फॉर थेरेपी सेशंस। ठीक है, मेडिकेशंस तो चलते हैं, मेडिकेशंस रहते हैं, वो आप साथ में कर सकते हो। आई टुक मेडिकेशंस अलॉन्ग विथ माई थेरेपी सेशंस, सो दैट हेल्प्स अ लॉट। आपकी पूरी पर्सनालिटी में, आपकी लाइफ में जो चेंजेस आपको जो चाहिए, नोइंगली अननोइंगली, वो आपको मिलते हैं फॉर श्योर। सो जब भी आपको लगता है कि ओके, अब मुझे दुनिया में कोई समझने वाला नहीं है, दैट्स द मोमेंट आपको थेरेपी के लिए जाना चाहिए। वंडरफुल वंडरफुल। आपके मेंटल हेल्थ के बारे में आपके फ्रेंड सर्कल में कॉन्वर्सेशंस होते हैं? बिकॉज मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि हम अहमदाबाद में हैं, इतना बड़ा अभी भी बॉम्बे जैसा मेट्रो है नहीं, अभी भी मुझे लग रहा है कि लोग जितनी आसानी से अपने फिजिकल हेल्थ अपॉइंटमेंट्स के बारे में बात करते हैं कि मैं तो ये स्पेशलिस्ट के पास जाता हूँ, मैं तो इसके पास जाती हूँ अपनी गायनेक ट्रीटमेंट के लिए, इतना आसानी से लोग अपने मेंटल हेल्थ थेरेपिस्ट के बारे में बात भी नहीं करते और शेयर भी नहीं करते। तो इसमें आपका क्या अनुभव रहा है? मेरे फ्रेंड्स और फैमिली सर्कल में भी सेम सिचुएशन है
कि अभी भी इस चीज़ को एक स्टिग्मा के जैसे देखा जाता है, अरे मैं पागल थोड़ी ना हूँ, मैं डिप्रेस थोड़ी ना हूँ कि मैं थेरेपी के लिए जाऊँगा। तो कन्वर्सेशंस नहीं होते हैं, नहीं हो रहे, मैं आई ब्रिंग अप द कन्वर्सेशंस। अब मैं बोलती हूँ कि नहीं, समथिंग इज रॉन्ग डूड, सी आई एम ऑल ईयर्स, तो बैठ मेरे सामने 5 घंटे बोल, मैं आराम से तुम्हारी बात सुनूंगी, बट उसको उस चीज़ को कैसे मैनेज करके देना है वो मुझे नहीं आता। करेक्ट। फॉर दैट यू नीड प्रोफेशनल हेल्प। तो मैं रेकमेंड करती हूँ लोगों को कि आप जाइए, इफ़ यू नीड, मैंने रेफ़र भी किए हैं बहुत सारे लोगों को कि आप जाएं। नॉट नेसेसरीली आपको भी इतने ज़्यादा थेरेपी सेशंस की ज़रूरत पड़ती है, समटाइम्स एक सिटिंग भी ओके हो सकता है, राइट? आपकी लाइफ सिचुएशन का सोल्यूशन आपको कैसे लाना है वो आपको सिर्फ एक पाथ देखने की ज़रूरत है, अदरवाइज एवरीथिंग इज वेल। और लाइफ कभी 100% ठीक होगी भी नहीं ना, वो तो अल्टीमेटली वो थेरेपिस्ट आपको ट्रैक पे लाता है, पर चलना तो आप ही को है, और कभी आगे जाके शायद डीरेल हो भी सकता है, बट आपको वापस ट्रैक पे आने की जो मेमोरी है, जो आपका अनुभव है, वो शायद कर सकते हो, बट स्टिल आई फील कि लोग उसको इजीली एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। मैं उनको मेरे एग्जाम्पल्स देती हूँ, मेरे कुछ सेशंस के एग्जाम्पल्स देती हूँ, मेरे कुछ लाइफ एग्जाम्पल्स देती हूँ, आई मीन हु आर वेरी डियर टू अस, दे सी हाउ छोटी छोटी बात पे मैं और मेरे हस्बैंड थोड़े आर्ग्यूमेंट्स करते थे, नाउ इट्स गॉन। सो मैं उनको बोलती, सी ये डिफरेंस आता है, तुझे अगर तेरी वाइफ से या तेरी हस्बैंड से प्रॉब्लम है, दिस कैन बी सॉल्व्ड, ठीक है? पीसफुल लाइफ जियो ना, क्यों आप उसको हम इग्नोर नहीं करें, किसी भी चीज़ को हम इसमें इग्नोर नहीं कर रहे हैं, बट इसका एक सोल्यूशन आ रहा है। सो और आपकी जो वो न्यूरोलॉजिकल जो कंडीशन थी, जो आपको ट्रेमर्स आते थे, उसको होने में, चेंज होने में कितना टाइम लगा? 6 to 8 months। 6 to 8 months, so it was a gradual recovery। और आपकी जो मेडिसिन थी वो चल रही है कि बंद है? अभी आई मीन द माइन्यूटेस्ट डोज जो मेरा चल रहा है वो अभी भी चल रहा है, बट हम उसको टेपर डाउन करने के फेज में है। सो धीरे धीरे अप्रोक्सीमेट इन नेक्स्ट 6 to 8 months हम लोग उसको कम्प्लीटली बंद कर सकते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। आपका आत्मविश्वास कितना था 0 to 10 पे? पहले कितना था, अभी कितना है? बिफोर, अगर 0 to 10 की ही बात करनी है, बिफोर इट वाज 3-4, नाउ 10 को भी पार करके। क्या बात है, क्या बात है। पुट मी इन एनी सिचुएशन, एनी डैम सिचुएशन, मैं हंसते हंसते उसको मैनेज कर दूंगी विदाउट दैट सिचुएशन अफेक्टिंग मी और माई मेंटल पीस, वैसा है। So you are back to being that strong, better girl, than, but without suppressing. Yes, better than what I was previous person. Wonderful, wonderful. अभी आप वो आपकी पुरानी फोटो अगर देखते हो, दो साल पहले की, yes, ज्यादा, अभी आपको क्या फीलिंग्स आती है? What do you feel? 2021 I guess it was. What do you feel now when you look at that old? I was like, okay, ये फेज भी जरूरी था शायद मेरे लिए, because अगर मैं उस फेज में ना जाती तो शायद मैं इस फेज में ना आ पाती। सो एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न। तो हाँ, मुझे वो लगता तो था कि यार मैं कैसी हो गई थी, कितना स्ट्रेस रहा होगा मेरी फैमिली के लिए, मेरे मॉम, मेरे ब्रदर, मेरे हस्बैंड के लिए, और उनके लिए भी वो एक ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस ही था कि मुझे इस सिचुएशन में देखना, जो बंदी हर बार भागते रहती है, कूदती रहती है, नाउ शी इज़ इन अ सिचुएशन कि वो कुछ भी नहीं कर पा रही है, शी इज़ जस्ट लाइंग डाउन, सिटिंग, और बिकॉज आई कुडंट डू, मैं सिर्फ लेट के पंखे को देख रही होती हूँ, दैट्स इट। मेरे दिमाग में ना कोई चीज़ प्रोसेस हो रही है, ना मैं कुछ भी यूज़ कर सकती हूँ, मैं सिर्फ देखते रहती हूँ, या मैं विंडो के बाहर देख रही हूँ सिर्फ पेड़ पौधे, दैट्स इट। सो उनके लिए भी ट्रॉमेटिक था, मेरे लिए भी वो। अभी उनको क्या लग रहा है? अभी दे आर मोर देन हैप्पी, दे आर लाइक ओ माई गॉड, कैसी थी तू और कैसी हो गई है। कभी कभी तो डर जाते हैं कि बस अब बस राइट। तो आपको क्या लगता है कि जो आपकी जो वो एपिसोड था जो चंद सालों का, वो एक ट्रॉमा की वजह से हुआ था कि वो बहुत सारे इंसिडेंट्स जमा हो? छोटे छोटे तो बहुत सारे थे छोटे छोटे, बट मेजर देयर वर 2-3। मेजर 2-3, और वो मेजर 2-3 पे काम करने से फर्क पड़ा कि वो छोटे छोटे को भी करना पड़ा था? मेजर 2-3 पे ज़्यादातर आई वुड से ऑलमोस्ट 80-90% फ़र्क पड़ गया था। जो छोटे छोटे इंसिडेंट्स थे वो तो यू नो जैसे ही मेरे ये थेरेपी होते रही, खुद प्रोसेसिंग, हाँ खुद प्रोसेसिंग वो होता रहा। तो हम इसको इंडेक्स ट्रॉमा कहते हैं। कई बार ट्रॉमा में क्या होता है कि बहुत सारे एपिसोड्स होते हैं, 50-60, तो वी कैन नॉट डू सेशन ऑन एवरी वन ऑफ देम, पर जो मेन 3-4 जो ट्रॉमा इवेंट्स होते हैं जिस पर हम काम करें,
तो बाकी तो फिर Automatic अपने आप होगा। बॉडी उसको Automatic, हील कर देता है. yes, automatic. Wonderful, wonderful. Thank you so much for sharing your journey with us. I think this would be very inspiring for many, many people, at least to Yes. talk about mental health, to Yes. acknowledge that they have a problem. दो तीन चीज़ें मुझे अगर समराइज करें तो मैं कहूँगी कि एक तो जब भी आपको कोई ट्रॉमेटिक इवेंट है तो दबा के मत रखो, मत रखो और वो Never. स्ट्रॉन्ग बनने का प्रेशर मत लो मत लो, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग बनने के चक्कर में पता नहीं है कि आप क्या कचरा दबा के ऊपर कारपेट डाल रहे हो, और फिर सालों तक वो भूल भी जाते हो कि वो अंदर क्या. वो स्ट्रॉन्ग बनने का जो मेडल है ना, हाँ. वो कोई काम में नहीं आता. सो इट्स ओके इफ यू आर वेरी यू नो, आप एक घर के ऐसे बच्चे या एक ऐसी बेटी या एक ऐसी बहू हो कि जो बात बात पे रो देती है, बात बात पे गुस्सा करती है, बात बात पे बोल देती है, दैट्स स्टिल फाइन रादर देन वो जो अवार्ड आप लोगे स्ट्रॉन्ग बनने वाला. एक्चुअली हमारे पास लोग पता है क्या कहते हैं, हमारा बच्चा ना बहुत इमोशनल है मैडम, इसका कुछ करो. इमोशनल होना या सेंसिटिव होना इज लुक्ड एज अ नेगेटिव क्वालिटी, और फिर मुझे कहना पड़ता है कि इंसान है तो इमोशनल ही होगा ना भाई. Yes. अगर इमोशनल नहीं है तो इट इज अ बिगर प्रॉब्लम. Yes. तो being emotional and being sensitive is a great Great thing. thing. That is a medal you should Yes. have, right? Yes. But what we are looking at as a culture is कि जितना आप ना इमोशनल रहो, ना सेंसिटिव रहो, स्ट्रॉन्ग बनो, उतना आपको वो ब्रेवरी अवार्ड मिलता है. मुझे वही था, मुझे पूरे फैमिली में यू नो जो मुझे अभी पता चला आफ्टर आई गॉट मैरिड, और शादी के टाइम पे जब सब लोग मिल रहे थे, बहुत सालों के बाद मिल रहे थे, आफ्टर 5-6 years वो लोग मुझे मिल रहे थे, एंड दे वर लाइक, मुझे तो अभी भी तू याद है, तू बहुत स्ट्रांग थी उस टाइम पे, तू रोई भी नहीं, तूने सारी चीज़ें की, शमशान में भी तूने सब अपने भाई के साथ सब तूने रिचुअल्स फॉलो किए. एंड द गुड पार्ट इज़ कि मुझे मेरे डैड ने वो सारी चीज़ें दिखाई थी व्हेन माय ग्रैंड मॉम पास्ड अवे. मुझे सारी चीज़ें पता थी ऑलरेडी कि व्हाट आर द रिचुअल्स. तो तूने बहुत अच्छे से मैनेज किया तूने और मेरे भाई ने, दोनों ने. सो ही वॉज लाइक आप दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग हो, बहुत अच्छे से हो. बट नाउ आई फील कि नहीं, वो चीज़ एक्चुअल में सही नहीं थी. हमें वहाँ पे वो स्ट्रॉन्ग दिखाने की ज़रूरत नहीं थी कि हम स्ट्रॉन्ग है, हम ये करेंगे. नहीं, इट्स ओके टू क्राई. अगर आपने शायद तब ब्रेक डाउन हो गया होता, शायद बॉडी को Yes. जो करना था प्रोसेस वो Yes. कर लिया होता, तो शायद आपको इस आगे की situation इतनी में शायद नहीं होता, राइट. शायद इट्स नहीं ऑलवेज अ होता. रेट्रोस्पेक्टिव Yes. थिंग, बट दैट इज योर लर्निंग, राइट. यस. तो अभी कुछ भगवान ना करे ऐसा कुछ भी हो, आई Yes. होप नथिंग हैपेंस, बट Yes. नाउ आई होप दैट वी गिव आवरसेल्व्स मोर परमिशन टू cry and be sensitive. Yes, And be I don't sensitive think being about emotional everything. should be a bad word. It should Yes. not be a weakness, it should be a strength. Achievement, yes, कि Yes. the person is able to process his or her emotions. It's a blessing. This would have also affected your family members, your brother and Yes, mother. majorly yes. Major. Both of them, my husband, बहुत ज़्यादा, they were so stressed. I could see that on their face, but I couldn't do anything. तो आप अभी उनको भी कोच करते हो? हाँ, बहुत ज़्यादा. मैं तो इनफैक्ट मेरे भाई को भी बोलती हूँ कि जब भी तू, ही इज़ नाउ इन कैनेडा, मैं उसको बोलती हूँ जब भी तू आएगा, यू ऑल्सो टेक सम सेशंस, इवन तो तुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाँ, फिर भी हाँ. यू कैन टेक सेशंस. तो क्या रिस्पॉन्स होता है? दे आर लाइक हाँ चलना, देखते हैं, करते हैं. खुश रखने के लिए कुछ कर लेंगे करते शायद. हैं लाइक. बट या दैट्स ऑल्सो आई वुड लाइक टू मेंशन कि थेरेपी लेने के लिए आपको बीमार होने की या उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, डिप्रेस्ड होने की. उस स्टेज में जाते क्यों हो, राइट. आई हैव अ फ्रेंड जिसको नाउ शी फील्स लाइक मुझे नहीं रेडी होना, ठीक है ना, चल जाएगा. नहीं, मैंने बोला गर्ल यू आर इन स्टेज 2, अब तो जाना पड़ेगा. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. बहुत जैसे सपोज कैंसर है या कोई भी बीमारी है, तो हम क्या करते हैं, अर्ली डिटेक्ट कर लेते हैं, तो उसकी शायद ट्रीटमेंट जल्दी हो सकती है, शायद आपके बचने के चांस जल्दी हो जाते हैं. पर मेंटल हेल्थ में लोग आई थिंक लास्ट तक पुश करते हैं. यस. कि उनको लगता है कि यार जब तक बिल्कुल ही गिर ना पड़ो, टूट ना पड़ो, तब तक कुछ नहीं करना है. तो ये गलत है. आई थिंक पहले से अगर पकड़ लो साइंस और थोड़ा बहुत वर्क करो, तो शायद आगे इतना जोर से गिरना ना पड़े. अब तो मेरे फ्रेंड्स को सबको मैं यही बोलती हूँ, वेन एवर यू फील लाइक डूइंग नथिंग, कि अच्छा वीक ऑफ है, आई डोंट वांट टू डू एनीथिंग, मैं जस्ट घर में बैठ के आराम करना चाहूँगा, आई जस्ट स्लीप फॉर एंटायर डे, समथिंग इज रॉन्ग. Something is wrong. Either you're overstressed, you're burnt out, or so this is the time आपको कुछ हेल्प लेनी चाहिए. नॉट नेसेसरली थेरेपी, काउंसलिंग से भी हो सकता है. यू नीड हेल्प. और आजकल की लाइफ, बिकॉज आई एम इनटू एस्थेटिक्स, आई कैन सी
बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ है। सबको अच्छा दिखना है, सबको अच्छे कपड़े पहनने हैं, सबको अच्छे गैजेट्स चाहिए, सबको अच्छे बाल लेटेस्ट चाहिए। फ़ोन, सबको अच्छे बाल चाहिए, सबको अच्छे डेस्टिनेशंस पे घूमना है, राइट? अच्छे बच्चे चाहिए। यस, अच्छे बच्चे चाहिए, वेल बिहेव्ड, हॉकी में भी वो चैंपियन हुआ, स्विमिंग भी उसको आना चाहिए, मार्क्स भी अच्छे होने चाहिए, क्योंकि मेरे सारे फ्रेंड्स को बच्चे हैं, तो वो अपने बच्चों को लेके भागती रहती है, दौड़ती रहती है कि उसकी ये क्लास है, ये क्लास है, ये क्लास है। आई एम लाइक, उसको तो ग्राउंड में ले जा, रेत से खेलने दे, जो हमने किया है, करेक्ट। राइट? वो क्लास से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला उसको। ऊपर से स्ट्रेस बढ़ता है, बच्चों में भी एंजाइटी बढ़ती है, पेरेंट्स में भी बढ़ता है। आजकल के बच्चे पेरेंट्स की वजह से स्ट्रेस्ड है और पेरेंट्स बच्चों की वजह से स्ट्रेस्ड है, क्योंकि सबको लेटेस्ट गैजेट्स चाहिए जो बहुत कॉस्टली होते हैं। एवरी ईयर सैमसंग और एप्पल नया फोन निकालेगा, बच्चे को नया फोन चाहिए, तो फाइनेंशियल बर्डन की वजह से पेरेंट्स स्ट्रेस में है। पेरेंट्स थोड़े पुराने ज़माने के हम बोल सकते हैं, जेन जीज आर टोटली डिफरेंट, तो पेरेंट्स की कुछ मेंटालिटी की वजह से बच्चे स्ट्रेस में। आई स्टिल फील आई हैव सम नीस एंड नेफ्यूज जो शो ऑफ करते हैं कि बिकॉज आई यूज टू वेयर फॉर्मल वेयर्स इन मेरे ऑफिस में ब्लेजर्स, एंड आई एम ऑलवेज इन ब्लेजर्स एंड एवरीथिंग, वर्किंग वूमेन, सो दे शो ऑफ, अरे ये मेरी मासी है, ये मेरी मामी है, ये मेरी चाची है, एंड ऑल दैट, राइट? सो शो ऑफ बहुत ज्यादा है अभी लाइफ तो में, और इसलिए वो उससे स्ट्रेस बढ़ रहा स्ट्रेस है, बहुत इसलिए ज्यादा मेंटल है, हेल्थ पे इश्यूज बहुत ज्यादा। एवरीबॉडी इज अंडर स्ट्रेस, एवरीवन। व्हाट डू यू डू टू हैंडल दिस स्ट्रेस एंड प्रेशर? सो ब्रीदिंग टेक्निक्स जो मुझे सिखाई गई थी, ब्रीदिंग टेक्निक्स, आई कैन नाउ कंट्रोल माई ब्रीदिंग पैटर्न, जिससे मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प होता है। सो आई हैव सर्टेन एप्स इन माई फ़ोन रिकमेंडेड बाई यू, जिससे कि मैं अपनी ब्रीदिंग कंट्रोल करती हूँ। आई डू सम प्राणायाम। ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटीज़ में अपने स्केड्यूल की वजह से नहीं कर पाती हूँ, बट वेन एवर आई एम फ्री मैं वो ब्रीदिंग टेक्निक्स फॉलो करती हूँ। I talk to people, as I said, I can talk to any object. अगर मुझे इस ग्लास से बात करनी पड़े, I can talk to this glass for 1 hour straight. वाओ, 1 मिनट कोई नॉक करे છે? हाँ, ओके। हाँ, सो अभी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हाँ अभी मुझे इमोशनल अगर होना है मैं हो जाती हूँ, अगर सामने कोई भी हो, राइट? सो वैसा है। Wonderful, wonderful. So I hope that this conversation was useful. I really feel that there were very good things that she pointed out. Do not suppress your emotions. Do not look at being emotional and sensitive as a negative point. Don't always try to be strong and in the process deny all the feelings and emotions that you went through. And one another important thing that she said was that do not always believe that the other person needs to change in order for your marriage to work. Even if you work on yourself, you can change the dynamics of the marriage and the relationship. Thank you so much, Bhumi, for sharing your journey with us. That was really very courageous of you, very, very authentic and honest of you. So I really appreciate that. All of you who have listened to this podcast, and if you've liked it, do write in the comments. Remember that every guest who comes to us and shares this journey has allowed themselves to be vulnerable. They have shared some very sensitive and some very touching deep parts of their life and emotions. So whenever you comment, keep that in mind. Be sensitive that these people have come here and shared their journey, so that you people and all of us become more sensitive to mental health challenges that we are facing today. We become more open and non-judgmental to our friends who may want to talk to us and discuss about it. And if we have issues, we may recognize it and without hesitation and shame actually reach out for help, because there is no shame in taking help, whether it is coaching, counseling, therapy, whatever else you may call it. You can try hypnotherapy, regression therapy, you can go to psychiatrist, psychologist, psychotherapist, counselor, whatever works for you, but do something about it before it is too late. Thank you so much, Bhumi, for this. Actually, I can talk hours and hours and hours and hours.